Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video we are going to discuss few topics which were remaining in last video of session 2 networking fundamentals for class 10th IT students. इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क. So today we will discuss what is modem. The term modem is actually conceived from the two processes that it performs, modulation and demodulation. So this is a device which is used in networking. It is also a networking device. And why its name is modem? Modem जो है इसका ये किस का abbreviation है, that is modulator demodulator. तो इसका अगर हम full form पूछें so it is modulator and demodulator. So it performs two processes, that is modulation and demodulation. तभी इसका नाम जो है modem है. Now what is modulation and demodulation? Modulation means process of turning a digital signal into analog signals. So obviously when we have to transfer some file from one computer to another, या हमें एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, then it sends that data in the form of signals. तो यहाँ कंप्यूटर जो अपने से ट्रांसफ़र करता है दैट इज़ डिजिटल फॉर्म, एंड जब वो चीज़ वायर्स में जाती है, यहाँ से ट्रांसफ़र होती है, तो इट ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल. तो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और उन्हें एनालॉग में कन्वर्ट करना है. सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज मॉड्यूलेशन. और फिर जब दूसरे कंप्यूटर में जा रहे हैं देन दे आर ऑफ फॉर्म एनालॉग सिग्नल. अब उन्हें दोबारा से, जिससे कि ये कंप्यूटर जो रिसीवर कंप्यूटर है दैट शुड अंडरस्टैंड दो सिग्नल्स, तो उसके लिए फिर से डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है. सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डीमॉड्यूलेशन. सो डीमॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस दैट टर्न्स एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल सिग्नल and can be read by the receiving computer. So this is a device which is used for connecting two computers. और इसकी functioning क्या है? It modulates the signals and demodulates the signal back for the receiving computer. Now next is name some commonly used internet connectivity. So these are type of internet connections. One is dial-up, DSL, cable internet access, WiMAX, Wi-Fi. So first of all we should know what is dial-up. Dial-up internet access is a form of internet access that uses the facility of public switched telephone network. So what is public switched telephone network? It means कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क में आता है. सो दिस डायल-अप, ये यहाँ पे एक कीवर्ड है. जब भी आप डायल-अप की डेफिनेशन लिखो तो आप ये वाला जो कीवर्ड है कि इट यूजेस पब्लिक टेलीफोन स्विच्ड नेटवर्क और इट यूजेस टेलीफोन नेटवर्क to establish a connection to ISP. So obviously internet is provided by internet service provider companies. So वहाँ से जो हम अपने कंप्यूटर को, जो भी हमें इंटरनेट एक्सेस लेना है, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है ISP से, so dial-up uses PSTN for connecting to the ISPs via telephone line using a device called modem. So modem के through they connect users computer to the internet service provider यूजिंग डायल-अप इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजी. यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है विच इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर दैट इज़ डायल-अप इंटरनेट एक्सेस विच uses the infrastructure of telecom, that is public switched telephone network, for accessing the internet. Users dial a particular number. तो dial-up टेक्नोलॉजी में क्या होता था, यूज़र्स डायल अ पर्टिकुलर नंबर, एक नंबर जैसे हम कॉल के लिए डायल करते हैं वैसे ही वहाँ पे इंटरनेट से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या ISP से जुड़ने के लिए दे यूज टू डायल अ नंबर एंड गेन द एक्सेस टू द इंटरनेट. Dial-up connections are extremely slow and in most cases it is replaced by a high speed connection such as DSL or cable modem. So this was the disadvantage of dial-up कि extremely slow था और एक टाइम पे हम एक ही चीज़ यूज़ कर सकते थे कि लाइक अगर कॉल आ रही है तो हम इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते, इंटरनेट उस वक्त कट जाता था. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ DSL. वी हैव सीन कि जो डायल-अप कनेक्शंस थे, डायल-अप टेक्नोलॉजी थी, उसको किसने रिप्लेस किया, DSL एंड केबल मॉडेम ने. सो हेयर नाउ व्हाट इज़ DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. तो इसका फुल फॉर्म ये है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. इट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क. DSL सर्विस इज डिलीवर्ड along the wired telephone service on the same telephone line. तो जो टेलीफोन लाइन घर पे आ रही है उसी टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट भी आता था
On the customer premises, a DSL filter removes high frequency interference, enabling simultaneous use of the telephone and data transmission. So DSL का ये एडवांटेज था कि यहाँ पे हम टेलीफोन का यूज़ एंड डेटा ट्रांसमिशन, इट मीन्स इंटरनेट, दोनों चीज़ सेम टाइम पे आएगी. कोई इंटरनेट आपका लॉस नहीं होगा, कोई रुकेगा नहीं व्हेन यू आर गेटिंग अ कॉल इन दोज टेलीफोन लाइन्स. सो DSL वॉज डिलीवर्ड अलॉन्ग विद द टेलीफोन सर्विस. तो इंटरनेट उनके घर पे आता था जिनके घर पे टेलीफोन सर्विस था, टेलीफोन कनेक्शन था, एंड इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द सेम टेलीफोन लाइन. इट रिमूव्स द हाई फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस. तो कोई स्मूथली आपकी हाई स्पीड आपको कनेक्टिविटी मिले उसके लिए देयर वॉज अ फिल्टर, DSL फिल्टर, जिसके थ्रू इंटरफेरेंस रिमूव किया जाता था. फॉर यूजिंग अ DSL कनेक्शन you need a DSL modem and a subscription. For example, here we need a modem for dial-up connection also, और यहाँ पे DSL के लिए भी आपको modem चाहिए and you have to subscribe for that service. Now next one, explain cable internet access. It is a form of broadband internet access. So like DSL is also a form of broadband internet access, and cable internet access is also a broadband internet access which uses cable television infrastructure. So this is the difference between cable internet access and DSL. दैट केबल इंटरनेट एक्सेस में क्या हो रहा है, आपका केबल टीवी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है. इट मीन्स जो केबल टीवी नेटवर्क है उसी के थ्रू आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है. बट हेयर इन DSL इट प्रोवाइड्स यू इंटरनेट over the telephone lines. It is similar to a DSL that is provided over existing telephone lines. तो इसका जो टेक्नोलॉजी है it is similar to DSL. It also provides you high speed internet access. Next question, explain 3G. अब तो 4G 5G चल रहा है, बट ये आपकी बुक में 3G है तो हम 3G का ही एक्सप्लेनेशन देखेंगे. It is in your syllabus. So it is short of third generation, is a set of standards used for mobile devices and mobile telecommunication services and networks. So 3G का फुल फॉर्म है थर्ड जनरेशन, और ये होता क्या है, जो भी मोबाइल डिवाइसेस के लिए और मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जो भी मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल सर्विसेज हैं, उनके लिए जो भी रूल्स डिफ़ाइन है, जो भी स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इसकी स्पीड ये होनी चाहिए, इतना ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ये बैटरी होनी चाहिए, जो भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन है for 3G mobile devices, those are called 3G. High speed downlink packet access, which is abbreviated as HSDPA, is a 3G mobile telephony communications protocol that allows higher data transfer speed and capacity. So in third generation we are having this protocol that is known as HSDPA, high speed downlink packet access, जो कि हमें क्या करता है, हायर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड एंड कैपेसिटी देता है. इफ़ सपोर्ट फॉर 3G इज़ अवेलेबल इन योर मोबाइल फ़ोन, you can subscribe to the 3G connectivity with your ISP. So obviously when you want to use 3G connectivity, then your mobile should support this 3G, तभी आप यूज़ कर पाएंगे in order to get high speed internet connection on your phone. So जब हम 4G यूज़ कर रहे थे तो what was happening कि अगर 4G मोबाइल नहीं है, जो 4G सपोर्ट करता है, ऐसा मोबाइल फ़ोन नहीं है, दैन यू आर नॉट एबल टू एक्सेस 4G कनेक्टिविटी. ऐसे ही 3G के साथ भी था. एक्सप्लेन WiMAX. WiMAX फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. सो ये जो WiMAX है वो वाईफाई की तरह थोड़ा बहुत है, बट ये क्या करता है, ये लार्ज एरिया को कवर करता है, लार्जर एरिया देन वाईफाई. It is a wireless communication standards designed to provide mobile broadband connectivity across cities and countries through a variety of devices. So using some devices we can provide connectivity across cities. एक सिटी के कंप्यूटर डिवाइसेस दूसरी सिटी से कनेक्ट हो सकते हैं यूजिंग WiMAX. WiMAX is a long-range system covering many kilometers and is typically used where DSL और cable internet access cannot be used. तो अगर DSL wired connection नहीं है, किसी एरिया में नहीं पहुंच पा रहे, तो वहाँ पे हम WiMAX को यूज़ करके we can provide internet connection. This could be difficulty in laying out cables for home or offices located in remote location but need access to the internet. तो ऐसी जगहें जहाँ पे आपका वायर्ड कनेक्शन नहीं पहुंच पाते, केबल्स नहीं जा पाती हैं, तो वहाँ पे या तो सैटेलाइट के थ्रू के इंटरनेट पहुंचाया जाता है, या फिर अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे आप WiMAX यूज़ कर सकते हैं, देन WiMAX कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्शन.
नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज़ वाईफाई. सो वाईफाई तो आप सबको पता ही होगा. इट इज़ अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट allows an electronic device such as computer or mobile phone to exchange data wirelessly over a network, including high-speed internet connections. Wi-Fi devices such as personal computers, smartphones, video game console can connect to a network resource such as internet through a device called wireless access point. So we need wireless access point जिसके थ्रू हम सारे जो भी वाईफाई डिवाइसेज है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, वीडियो गेम हो, स्मार्टफोन हो, हम उन सबको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. Wi-Fi is used where cables cannot run, such as old building outdoor areas, to provide a network and internet access. So now you will find that many people are using Wi-Fi instead of these cables. ना घर पे तो normally हम लोग Wi-Fi ही use करते हैं. Wi-Fi can also be used where users require mobile connectivity. So if you don't want cable connections, तो हम क्या कर सकते हैं, हम simple mobile connectivity चाहिए, यानी कि wireless चाहिए, हमें इधर उधर मूव करना है, then we can use Wi-Fi. Wi-Fi connectivity is used in homes, offices, hotels, colleges and school campus, typically for internet access. Shopping malls में भी आपको देखने को मिलेगा. Coffee shop, resorts mostly offer free or paid Wi-Fi access to the internet for their customer. तो ये Wi-Fi explain करना बहुत easy है, बस आपको इसका ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो ये वाला है, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है. बाकी ये कहाँ यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, ये तो आप इजीली बता सकते हैं. सो ये वाली लाइन थोड़ा सा है कि वाईफाई डिवाइसेस जो भी जिनमें आपके वाईफाई इनेबल्ड डिवाइसेस जो हैं, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, वीडियो गेम कंसोल, अगर उन्हें नेटवर्क रिसोर्स से कनेक्ट करना है, जैसे कि इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट ये डिवाइस है विच यू नीड. सो आपको उसके लिए वायरलेस एक्सेस पॉइंट चाहिए होता है. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, और बाकी तो आप अपने मन से थोड़ा बहुत लैंग्वेज में फ्रेम करके यू कैन राइट योर ओन आंसर. नाउ दिस लास्ट टॉपिक इज़ हाउ डेटा इज़ ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट. तो लाइक एक कंप्यूटर है, उससे हमें दूसरे कंप्यूटर में कुछ डेटा सेंड करना है, देन हाउ इट विल बी सेंड. डेटा इज़ ब्रोकन अप इनटू बिट्स ऑफ सेम साइज्ड पीसेस कॉल्ड पैकेट्स. तो सबसे पहले जो डेटा होता है, जो भी हमें सेंड करना है, वो छोटे छोटे बिट्स के फॉर्म में क्या करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं, एंड देन दीज बिट्स आर कॉल्ड पैकेट्स. तो सबसे पहले जो डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेक किया जाता है. सो यू कैन मेक दिस फ्लो चार्ट इन योर नोट्स ऑल्सो, कि डेटा को हम सबसे पहले पैकेट्स में ब्रेक करते हैं, उसके बाद पैकेट्स को जो है एक कंप्यूटर से नेक्स्ट कंप्यूटर में सेंड किया जाता है. और वी कैन से कि राउटर जो है वो देख सकता है कि कौन से उसका एड्रेस, जो भी पैकेट होता है उसमें एक हेडर होता है जिसमें कि मेंशन होता है कि ये कौन से कंप्यूटर से आया है, सेंडर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और रिसीवर्स कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मेंशन होता है कि इसको किस कंप्यूटर में जाना है. सो ईच पैकेट इज़ सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स इट्स डेस्टिनेशन. तो ये जो पैकेट्स हैं ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रैवल करते हैं अंटिल इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन कंप्यूटर. तो राउटर होता है, राउटर देखता है कि इस पैकेट को कहाँ सेंड करना है, तो ऑब्वियसली इट डायरेक्ट्स इट टूवर्ड्स दैट कंप्यूटर. ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड्स वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट. ऑल द पैकेट्स में नॉट टेक द सेम रूट. सो लाइक अगर एक कंप्यूटर यहाँ है और ऐसे बीच में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और फाइनल डेस्टिनेशन वाला कंप्यूटर यहाँ है, तो ऑब्वियसली एक डेटा है उसके बहुत सारे पैकेट्स बन गए. अब एक पैकेट 2, 3, 4 मान लेते हैं कि ये 4 पैकेट्स हैं. तो ऐसा नहीं है कि सारे 4 पैकेट्स एक टाइम पे यहाँ से जाके सीधे यहाँ से जाके यहाँ फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे. ऐसा हो सकता है कि एक पैकेट इसके थ्रू जा रहा है, एक यहाँ से होते हुए जा रहा है, तो ये सब अलग अलग रूट से जाएंगे और फाइनली जब डेस्टिनेशन कंप्यूटर में ये मिल जाते हैं तो ये वापस से असेंबल हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर नंबरिंग होती है, लाइक फर्स्ट पैकेट, सेकेंड पैकेट, थर्ड पैकेट, फोर्थ पैकेट. तो जब यहाँ पे ये अलग अलग टाइम पे, लाइक सबसे पहले फोर्थ पैकेट पहुँच गया, देन सेकेंड पहुँचा, देन थर्ड पहुँच जाए एंड देन फर्स्ट पहुँचा है, तो ये कंप्यूटर जो है इन सबको फिर से असेंबल करेगा और प्रॉपर डेटा बनाएगा टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन कि इसमें क्या है. एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन्ड. इफ़ एनी पैकेट इज़ मिसिंग, और अगर इन केस कोई पैकेट मिसिंग हो गया या डैमेज हो गया, तो अ मैसेज सेंड टू दैट कंप्यूटर कि प्लीज़ सेंड दिस मैसेज अगेन. तो अगर कोई भी एक पैकेट मिस हो गया तो दोबारा से वो मैसेज वापस से भेजने को बोलता है. दिस कंटिन्यूज अंटिल ऑल द पैकेट्स हैव बीन रिसीव्ड इंटैक्ट. तो ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक का ये सारे पैकेट्स एक डेटा के प्रॉपरली यहाँ पे रिसीव ना हो जाए, असेंबल होके अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना आ जाए.
सो आई होप दिस सेशन नेटवर्किंग फंडामेंटल्स आपको क्लियर हुआ होगा. इन केस अगर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क, बट इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये जो टॉपिक्स हैं इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सो दैट अगर शॉर्ट नोट आता है इन पे लिखने को, सो यू कैन ईजिली राइट द शॉर्ट नोट ऑन दीज टर्म्स. सो दिस मच इन दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको ये समझ में आ गया है, और कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.